Hello students, in this video I Abhay Kumar going to solve NCERT textbook problem 3.9 based on Kirchhoff's rules. इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम 3.9 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो किरचॉफ्स के नियमों पर, किरचॉफ्स रूल्स पर बेस्ड है। इसी चैप्टर का मतलब चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नंबर 3.5 टू 3.8 का सॉल्यूशन इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3.9 इज NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम। Determine the current in each branch of the network shown in figure given in the text. This is the figure which looks like to be, which is similar to a Wheatstone bridge, but it is not a balanced Wheatstone bridge because the condition of equilibrium of Wheatstone bridge P by Q is equal to R by S is not fulfilled. P by Q, that is 10 ohm upon 5 ohm, is equal to the ratio of 10 ohm upon 5 ohm is 2, while the ratio of two other resistances in the lower branch of the circuit, that is 5 by 10, 5 ohm by 10 ohm, that is 1 by 2. तो इस गिवन सर्किट का अपर ब्रांच में दो आर्म्स हैं, दो रेजिस्टेंसेस हैं, उनका रेशियो 10 by 5 2 होता है, और यहाँ इसके लोअर ब्रांच में 5 by 10 दो रेजिस्टेंसेस लोअर ब्रांच में भी हैं, इसके थर्ड एंड फोर्थ आर्म में, तो उसका रेजिस्टेंसेस का रेशियो 5 by 10 1 by 2 होगा। जबकि कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में P by Q इक्वल टू R by S होता है। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के अपर टू आर्म्स का रेजिस्टेंसेस का रेशियो उसके थर्ड तथा फोर्थ आर्म में जो रेजिस्टेंसेस होता है उसके रेशियो के इक्वल होता है, डेट इज P by Q इक्वल टू R अपॉन S। वैसा यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए यह सर्किट देखने में तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इट इज़ नॉट ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसलिए इसका जो डायगोनल आर्म है BD, इसमें रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द डायगोनल आर्म, सो देयर विल बी करंट पासिंग थ्रो द डायगोनल आर्म इन विच 5 ओम रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड, इज कनेक्टेड. So there will be current through 5 ohm resistance in the diagonal arm BD of the given circuit. Here in this circuit a battery of 10 volt EMF is provided, is given. Suppose I is the current taken from the supplied from the battery, and it passing through a resistor 10 ohm which is connected in series to the battery, and this current I, which is the total current, which is the current taken from the battery, which is the current supplied from the battery, reaches to point A, where it is divided into two parts. One part I1 passes through resistor 10 ohm in arm AB of the circuit, while another part I2 will pass through another resistance 5 ohm along the wire AD having resistance 5 ohm. So main current I, total current I from the battery is divided into two parts, I1 in the wire AB and I2 in the wire AD having 5 ohm resistance, while AB arm having 10 ohm resistance. So using Kirchhoff's junction rule, that is Kirchhoff's first rule, that is Kirchhoff current law KCL, or junction rule at the junction A of this circuit. So using Kirchhoff current rule or junction rule at point A of the junction using KCL, Kirchhoff first rule is also called Kirchhoff current rule. Kirchhoff first rule को Kirchhoff current rule और junction rule भी कहा जाता है. Using KCL at the junction A of the given circuit, at the junction A, क्या होगा? Total current, I current is coming towards the junction A, so I can be taken as positive according to the convention. I current positive लेना होगा क्योंकि junction A की तरफ जा रहा है, और I1 I2 current 10 ओम रजिस्टर से और 5 ओम रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो टोटल करंट आई है उसका दो पार्ट्स में,
तो ये करंट दोनों जंक्शन ए से दूर जा रहा है, तो इसलिए I1 और I2 अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन निगेटिव होगा। लेकिन करंट I जंक्शन के टुवार्ड्स मतलब जंक्शन ए की ओर जा रहा है, टुवार्ड्स करंट I इज coming towards the junction A, so current I is positive while I1 and I2 is negative. So using Kirchhoff current rule or Kirchhoff first rule or Kirchhoff or junction rule at junction A, we have I minus I1 minus I2 is equal to 0, because the algebraic sum of all currents at a junction is 0. So we have at junction A I is equal to total current from the battery is equal to I1 plus I2. This is equation number 1. Now using Kirchhoff voltage rule or mesh rule or loop rule in branches A, B in the closed loop or in the branches in the closed circuits of this diagram A, B, DA and A, B, DA, B, C, D, B, and in the external circuit A, B, C, N, M, A. तो थ्री क्लोज सर्किट में थ्री क्लोज लूप्स में किरचॉफ सेकेंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज करना होगा, और किरचॉफ फर्स्ट रूल का यूज किया गया जंक्शन ए पर, तो उससे रिजल्ट मिला I इक्वल टू I1 प्लस I2, जिसका यूज होगा फर्दर प्रॉब्लम में। नाउ यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल KVL और किरचॉफ सेकेंड रूल इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज रूल और मेश रूल और लूप रूल यूजिंग KVL in the closed loops. First of all, in closed loop A, B, DA, first of all Kirchhoff KVL in the closed loop A, B, DA, और इसमें जो रजिस्टर से उसका पाथ हम क्लॉकवाइज सपोज करते हैं, मतलब A to B, B to D and D to A. दिस इज क्लॉकवाइज पाथ ऑफ द रजिस्टर्स, and in BCDB it is also clockwise path of the resistors is taken as also clockwise, while in the external circuit A, B, C, N, M, A it is also in clockwise direction, that is path of the resistors is also in clockwise direction. So using Kirchhoff voltage rule in closed circuit A, B, DA, अब सबसे पहले करंट I1 10 ओम के रजिस्टर से है, और यहाँ देखा जाए रजिस्टर का जो पाथ है A to B क्लॉकवाइज लिया गया है, और करंट का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, मतलब A to B ही है। तो इसके लिए रूल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए किरचॉफ सेकेंड रूल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज रूल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप A, B, DA कितना होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कब निगेटिव होगा, कैसे कब पॉजिटिव होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए अगर रेजिस्टेंस का पाथ और करंट का उस रजिस्टर से करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होता है। तो AB वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, करंट कितना है, I1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो पाथ है A to B क्लॉकवाइज और करंट का भी सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, करंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस रजिस्टर 10 ओम इज I1 इंटू माइनस I1 इंटू रजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, माइनस I1 इंटू 10। अब इसमें BD पार्ट में देखिए रेजिस्टेंस का जो पाथ है वो क्लॉकवाइज है और करंट का डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन के उसी के लॉन्ग है, मतलब B to D है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम रजिस्टर के क्रॉस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू IR करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना हमने सपोज किया है I3, इस BD डायगोनल आर्म में, इस सर्किट के डायगोनल आर्म में करंट हमने कितना सपोज किया 5 ओम रजिस्टर से I3, जो करंट I1 10 ओम रजिस्टर से फ्लो कर रहा है, I पर में टोटल करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट में I1 I2 में, और यहाँ I1 तक मतलब I1 करंट B पॉइंट तक ट्रेवल करेगा B पॉइंट तक, और B पॉइंट पर पहुँचने के बाद यहाँ पर फिर करंट का डिवीजन होगा। तो सपोज किया गया 5 ओम रजिस्टर जो डायगोनल आर्म BD में 5 ओम का रजिस्टर लगा है, जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, 5 ओम रेजिस्टेंस से होकर I3 करंट, I1 में से I3 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है 5 ओम से, तो रिमेनिंग करंट कितना हो जाएगा, जो सेकेंड आर्म है 5 ओम रजिस्टर का इस सर्किट में, उससे होकर करंट कितना हो जाएगा I1 माइनस I3, 5 ओम में चला गया तो I1 माइनस I3, और BD आर्म में D पॉइंट तक I3 करंट जाएगा, और फिर A to D करंट कितना है, A to D करंट I2 है 5 ओम रजिस्टर में, जो कि थर्ड आर्म में इस सर्किट का, और D पॉइंट तक कितना करंट है, B से D तक I3 करंट 5 ओम रजिस्टर से होकर, और A to D तक करंट कितना है I2 5 ओम रजिस्टर से होकर थर्ड आर्म में। तो D पॉइंट पर दोनों करंट में मीट होकर के, दोनों करंट मिल करके कितना हो जाएगा I2 प्लस I3, है ना, बोथ करंट्स I2 and I3 आर कंबाइंड टू फ्लो थ्रू रजिस्टर इन फोर्थ आर्म, दैट इज 10 ओम रजिस्टर, करंट इज I2 प्लस I3।
while in the second arm current is I1 minus I3. The total current at junction C, another junction C, is I1 minus I3 plus I2 plus I3. I3 plus I3 minus I3 will cancel out, then we will left with I1 plus I2. तो C पॉइंट पर करंट कितना मिलेगा? I1 plus I2, और I1 plus I2 और कुछ नहीं है बल्कि मेन करंट I जो टोटल करंट बैटरी से था उसका डिवीजन है, टू पार्ट्स में डिवीजन है, I1 एंड I2. I1 10 ओम से होकर के, I2 5 ओम से होकर जंक्शन ए पर. तो जितना करंट इंटर किया ए पर उतना ही करंट सी से बाहर निकला. इस प्रकार सर इससे क्लियर है कि सर्किट में, टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दिया है, सर्किट दिया है, उसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो यहाँ सपोज किया है वह क्या है, बिल्कुल सही है. नाउ इन द क्लोज इन आर्म बी डी करंट इज I3, रेजिस्टेंस इज 5 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? क्योंकि करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का जो पाथ है, तो वह रेजिस्टेंस के ट्रेवर्स करने का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के क्रॉस क्या होगा? नेगेटिव. माइनस I3 इंटू 5, माइनस I3 इंटू 5. अब देखा जाए इसमें, इस क्लोज सर्किट में फर्स्ट जो लूप लिए हैं ABDA में, अब एक और रेजिस्टेंस है 5 ओम का रेजिस्टेंस ADR में, लेकिन इसमें जो रेजिस्टेंस का जो पाथ है वो क्लॉकवाइज है, मतलब D2A है, लेकिन करंट ऊपर से आ रहा है, मतलब ए पॉइंट पर डिवाइड हुआ है करंट टू पार्ट्स में, तो I2 करंट इससे होकर आ रहा है. तो जब किसी रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन उसके पाथ के जो रेजिस्टेंस का जो पाथ है उसके अपोजिट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो ADR में जिसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? प्लस I2 इंटू 5. तो प्लस I2 इंटू 5, एंड किरचॉफ सेकेंड रूल से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑल थ्री जो रेजिस्टेंसेस है, मतलब इस क्लोज लूप में, उसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल KVL, दैट इज 0. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. यहाँ अगर 5 कॉमन ले लें, इस टर्म में 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में 5 कॉमन लेकर के, और 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर ब्रैकेटेड टर्म विल इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 5 इंटू 2 माइनस 10, माइनस 2i हो जाएगा. और यहाँ I2 वाला टर्म को पहले लिख रहे हैं, 5 कॉमन ले लिया गया है, तो इसलिए सेकेंड टर्म अब I2 लिख रही है, केवल I2, और थर्ड टर्म माइनस I3, 5 कॉमन ले लिया गया है, तो माइनस I1 इंटू 10 की जगह कितना लिखेंगे? 5 कॉमन है तो माइनस 2i प्लस I2, और प्लस माइनस 5i3 है, 5 कॉमन है तो केवल माइनस I3. और चूंकि 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 5 को तो कॉमन ले लिया, तो 5 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ब्रैकेटेड टर्म ही 0 होगा. तो माइनस 2i1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, सेम रूल इन द सेकेंड क्लोज लूप BCDB. तो इन द क्लोज लूप, नाउ इन using Kirchhoff's second rule in the closed loop BCDB. अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पाथ है रजिस्टर्स का इस क्लोज लूप में, वो भी क्लॉकवाइज लिया गया है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं BC से, BC आर्म में, जो कि सेकेंड आर्म है इसका गिवन सर्किट का. इसमें 5 ओम का रजिस्टर लगा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का जो पाथ है, रेजिस्टेंस के ट्रेवर्स का जो पाथ है वह क्या है? सेम है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम. BCR में जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस 5 ओम, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी नेगेटिव होगा. तो करंट कितना है BCR में? I1 माइनस I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? माइनस I1 माइनस I3 इंटू 5, करंट इंटू रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ. तो इन आर्म BC पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम इज माइनस I1, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी नेगेटिव, माइनस I1 माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाई 5. अब देखा जाए CD आर्म में, जो कि फोर्थ आर्म है, इसमें करंट नीचे से जा रहा है, D to C जा रहा है, I2 प्लस I3, लेकिन रजिस्टर का जो पाथ है वह कैसा है? वह किधर है? क्लॉकवाइज है, मतलब C से रजिस्टर ट्रेवर्स कर रहा है, C से D के अलोंग, और करंट उसके अपोजिट है. तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस CDR में क्या होगा? 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस पोटेंशियल डिफरेंस करंट I2 प्लस I3 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 10 है. अब एक रजिस्टर और बचा इसमें BC सेकेंड लूप में, वह कौन है? BD है, उसमें 5 ओम का रजिस्टर उसमें इंट्रोड्यूस्ड है, 5 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, लेकिन रजिस्टर का जो पाथ है वह D2A है, क्लॉकवाइज हमने लिया है पाथ रजिस्टर्स का, लेकिन करंट का डायरेक्शन B to D है, उसके अपोजिट है, पाथ के अपोजिट है, इसलिए फिर से पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के क्रॉस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो प्लस I3 करंट इंटू रेजिस्टेंस 5, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? सबका सब 0 हो जाएगा यूजिंग किरचॉफ सेकेंड रूल. अब यहाँ क्या होगा? माइनस 5i1 और माइनस 5i1 का एक ही टर्म है, तो ब्रैकेट यहाँ पर हटा करके माइनस 5i1 और I2 10i2 प्लस I2 भी एक ही टर्म है, तो 10 प्लस 10i2 प्लस 10i2 प्लस 10i2, और फिर यहाँ पर I3 10 है और I3 यहाँ 5 है, तो 10 प्लस 5 15, और यहाँ पर भी माइनस
माइनस बाहर में है तो माइनस ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आई 5/3, तो 10I3 प्लस 5/3 प्लस 5/3, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, तो प्लस 20I3 इजक्वल टू 0। और यहाँ भी 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो -I1, देयरफॉर -I1 प्लस 5 × 2, यहाँ 2I2 हो जाएगा, और यहाँ 20 है प्लस 4I3 इजक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इजक्वल टू 0। तो सेकेंड लूप का यूज करके हमारा ये रिजल्ट आया -I1 प्लस 2I2 प्लस 4I3 इजक्वल टू 0। अब एक और एक्सटर्नल सर्किट ले लिया जाए, ABCNMA, तो वैसा अगर किया जाए तो हमें एक और रिलेशन मिल जाएगा, और तब हम दो इक्वेशंस को 1 और 2 को, और फिर 2 और 3 को सॉल्व करके 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल्स में ले आएंगे, I1 I2 में, और तब सॉल्व करेंगे तो करंट मालूम करना है इस डिफरेंट ब्रांचेज में। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग याद रखेंगे, I इजकल टू I1 प्लस I2, इसका यूज पड़ेगा तुरंत। तो अब इन द यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल इन द एक्सटर्नल सर्किट ABCNMA, नाउ इन द यूजिंग किरचॉफ फाइनली यूजिंग KVL इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल क्लोज लूप, कौन सा है, AB, स्टार्ट करते हैं ABC, उसके बाद बाहर N यहाँ पॉइंट एक ले लिया गया है, और इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बॉटम में M, तो ABCNMA तक, A से स्टार्ट किया तो ABCNMA, ये क्लोज पाथ हो गया। इसमें किरचॉफ वोल्टेज रूल या किरचॉफ सेकंड रूल का यूज करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया जाए AB ब्रांच से, जिसमें रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टर लगा है, और करंट कितना I1 है, और यहाँ भी पाथ वही लिया है, क्लॉकवाइज ही लिया है रेजिस्टर्स का पाथ, और करंट का भी डायरेक्शन इसमें सेम डायरेक्शन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम AB ब्रांच में, AB वायर में जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I1 इंटू 10, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इजकल टू IR यूजिंग ओम्स लॉ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का पाथ के ट्रेवर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो -I1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम हो गया, -I1 इंटू 10, और फिर अब BCR में 5 ओम का रजिस्टर है, उससे में कितना करंट है, I1 माइनस I3, और वहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का पाथ क्लॉकवाइज ही है, तो सेम डायरेक्शन में। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम BCR में, सेकेंड आर्म में सर्किट का 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फिर निगेटिव होगा, तो माइनस, लेकिन सबका सम लेना है अलजेब्रिक सम, तो -I1 माइनस I3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ पर चला जाए, बैटरी है, और बैटरी का EMF कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, तो बैटरी में अगर करंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव है, मतलब सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में है, तो सेल का EMF क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सेल का EMF भी उसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में ऐड होगा, तो प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ करंट का डायरेक्शन, करंट इंटर कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव है, तो इस सेल में तो EMF पॉजिटिव होगा, तो प्लस 10 वोल्ट। और अब यहाँ पर 10 ओम का एक और रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर, इसमें भी करंट इंटर कर रहा है, और रजिस्टर का पाथ क्लॉकवाइज है, और करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो 10 ओम रजिस्टर के क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव होगा, तो -10, और I है, टोटल करंट कितना है I, और I का मतलब क्या है, I1 प्लस I2, तो I की जगह क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सभी सिमिलर टर्म को एक साथ किया जाए, -10I1 और यहाँ -5I1, तो -15I1 और -10I1, दैट इज -10I1 -5I1 और -10I1, तो -10I1 -5I1 -15I1 -10I1, दैट इज -25I1, और -25I1, और I2 का भी टर्म है, यहाँ पर एक ही टर्म है 10I2, तो माइनस आ गया है, तो -10I2 और I3 का टर्म इसमें एक ही है, -5I3, और आगे माइनस है, तो माइनस प्लस ब्रैकेट अगर यहाँ हटाया जाए, तो -I1 प्लस I3 इंटू 5, तो प्लस 5I3 हो जाएगा, प्लस 5I3, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी इक्वल टू 0, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द क्लोज लूप इज 0। यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया जा सकता है इस टर्म में भी, तो फर्स्ट टर्म में हो जाएगा कितना, फर्स्ट टर्म में हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 5 कॉमन लेने पर 5 इंटू 5 -25 हो जाए, 5 इंटू -5 मैंने यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो -5 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, तो -5I1, और 5 तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो -5I1 ब्रैकेट के अंदर का टर्म ही 0 होगा, तो ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को ही लिख रहे हैं। 5 बाहर कर लिए हैं कॉमन, तो 2I2 प्लस 5 बाहर कर लिए हैं ब्रैकेट के,
तो लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है 5 और 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ब्रैकेट के अंदर टर्म से 0 होगा, तो ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो -5i1 और 5 चूँकि कॉमन है तो -2i2 अब +i3 इक्वल टू 0। अब आपका इक्वेशन नंबर ये 4 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन तो था i इक्वल टू i1 + i2। अब इसमें हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन? 2 और 3 को कर लें सॉल्व, तो 2 वेरिएबल में आ जाएगा। i3 को हमको कैंसिल करा देना है, तो और उसके बाद 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे। तो 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा रिलेशन आ जाएगा कितना। और यहाँ पर एक टर्म था +10 था, यहाँ +10 था, तो +10 किधर चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर -10 कर दें, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ -10, यहाँ करेक्शन थोड़ा करना है। -10, 5 कॉमन ले लिए हैं, तो 5 से 10 कैंसिल होकर के क्या बचेगा? 5 से मतलब 5 ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ -10 है, तो -10 कैंसिल होकर यहाँ पर कितना होगा? 5 × -2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 में -5i1 -2i2 + i3 इक्वल टू -2। अब इक्वेशन हम 1 और 2 मतलब 2 और 3 को सॉल्व करें। 2 और 3 को सॉल्व करने का मतलब है कि i3 कैंसिल कराना है। तो इक्वेशन 2 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 में, और 3 में ऐड कर देते हैं, तो +4i1 -4i3 कैंसिल हो जाएगा। तो थर्ड टर्म है i3 करंट वाला, वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 एंड एडिंग टू 3, और उसके बाद हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो 2 वेरिएबल में आंसर आ जाएगा। तब फिर हम उन 2 वेरिएबल्स में जब i1 i2 में आंसर इक्वेशंस आ जाएगा, तो उसकी हेल्प से हम करंट i1 i2 मालूम कर लेंगे। उसके बाद i1 i3 मैंने ईच ब्रांच में करंट का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 से करना होगा, क्योंकि यहाँ -i3 है और इक्वेशन 2 में -i3 है और 3 में क्या है? 4i3 है। तो 4i3 + 4i3 में तो यहाँ -4 से मैंने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले से है, तो -4i3 और +4i3 कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना होगा किससे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 × 4, और फिर 2 में से 3 को क्या करेंगे? 2 और 3 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसमें इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4 प्लस और उसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × i1 -8i1 फर्स्ट टर्म में, और 4 से मल्टीप्लाई करना है तो +i2 है, तो 4i2 + 4i2 -4i3 -4i3 को ही तो कैंसिल कराना है। राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब इक्वेशन हम 4 को, चूँकि 3 को ऐड करना है इसमें, तो 3 को ऐड कर दें। इसमें 3 है सामने बोर्ड पर सबसे नीचे में इन द बॉटम। तो ये 3 कितना है? -i1, ये हो गया -i1 +2i2 + 4i3, RHS भी 0 है, RHS इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करना है, +4i3 -i3 0 हो गया, -8i1 -i1 दैट इज -1i1, तो माइनस क्या, दोनों नेगेटिव है, ऐड होकर -9i1, और प्लस यहाँ क्या होगा? 4 + 2 6 +6i2 -9i1 + 6i2 इक्वल टू 0। और यहाँ से 3 मतलब कॉमन हो सकता है, तो फर्स्ट टर्म में 3 × 3 -9 और 6 है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2i2 इक्वल टू 0। 3i1 -3i1 + 2i2 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन हमको मिल गया कौन? 5। और इससे रिजल्ट मिल गया, इसको लिख सकते हैं 2i2 इक्वल टू 3i1, -3i1 को RHS में ले गए, तो i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2i2 इक्वल टू 3i1, देयरफॉर i2 इक्वल टू 3/2i1। तो इससे रिजल्ट एक मिला i2 इक्वल टू, जिसका ज़रूरत होगा बाद में, 3/2i1। यही 5 है, 5 से ही मतलब ये 5 इक्वेशन का ही है पार्ट है, इसको 5 से ही ऑब्टेन किया गया, तो इसका नाम 5 दे देते हैं। i2 इक्वल टू 3/2i1 बाद में हम यूज करेंगे इसका। अब क्या करेंगे हम? अब इक्वेशन 3 को सॉल्व किया जाए और फिर 4 को सॉल्व किया जाए। इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व किया जाए। इसमें भी i3 को कैंसिल कराना है, मतलब 4i3 है, यहाँ पे कितना है? केवल i3 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 में 5 को क्या करना, 3 को क्या करना पड़ेगा? 3 में से मतलब 4 में क्या करेंगे हम? इक्वेशन 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 3 में से माइनस कर लेंगे, तो हमें अब मिलेगा रिजल्ट। पहले हम 3 को इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया i2 इक्वल टू 3/2i1। और यहाँ से भी एक और रिलेशन हम 2 वेरिएबल में i3 को कैंसिल करा करके ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए करना होगा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन 4 था। इक्वेशन 4 कितना था? इक्वेशन 4 था हमारा, जिसको हमने मिटा दिया है,
तो ये इक्वेशन 3 तो -I1 + 2I2 + 4I3 = 0 है। और वह इक्वेशन कितना था एक्सटर्नल सर्किट में हमने जो यूज़ किया था -5I1 -2I2 + I3 = -2। -5I1 वह इक्वेशन था -5I1 और उसके बाद -5I1 + -2I2 + I3 = -2 -2I2 -5I1 -2I2 + I3 = -2 था। दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस वाज इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ 3 है -I1 + 2I2 + 4I3 = 0। अब इसमें से क्या करना होगा, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 4 में और 3 में से 4 को माइनस कर लें तो हमारा रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो क्या करना होगा, यूजिंग मल्टीप्लाइंग यूजिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बोथ साइड्स बाई कितना से करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 3 में से घटाना होगा 4 में इक्वेशन 4 को, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करके। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में से 4 को घटाएंगे लेकिन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करना है तो पहले 3 लिख लें ऊपर में। तो -I1 + 2I2 + 4I3 = 0 इक्वेशन 3 था। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से माइनस करना है लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर के 4I3 आएगा। तो +4I3 - 4I3 माइनस करने पर इक्वेशन 4 को, तब जाकर के थर्ड टर्म कैंसिल होगा। तो 2 टर्म बचेगा 2 वेरिएबल्स में I1 I2 के टर्म में। तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो 5 × 4 -20 I1 -2 है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8 I2 और + 4I3, यही तो हमको करना था। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे = 4 से मल्टीप्लाई किया तो -2 × 4 दैट इज 8। और अब सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से 4 को, 4 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, अब 3 में से उसको माइनस करना है 4 को। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस है नीचे, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ भी -8 I2 है, प्लस हो जाएगा। 4 है + 4I3 है, यहाँ तो माइनस हो जाएगा और यहाँ +8 है तो -8 हो जाएगा। अब यहाँ +I1 और यहाँ -I1 और यहाँ 20I1 + 20I1 में से I1 माइनस हो गया तो कितना 19I1 और यहाँ +8I, अब माइनस था तो माइनस साइन चेंज हो गया सब्ट्रैक्ट करने के कारण, इक्वेशन 3 से 4 को माइनस करने के कारण। ये +8 और +2 दैट इज प्लस हो गया कितना 10I2 और ये तो कैंसिल हो गया, + 4I3 - 4I3 कैंसिल हो गया = 0 -8 हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 19I1 + 10I2 19I1 + 10I2 = और यहाँ 4 में -2 था तो यहाँ पर -8 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यह साइन प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। साइन चेंज हो गया, माइनस यहाँ छूट गया था, यहाँ -8 होना चाहिए, हमने 8 लिखा था, इसको आप लोग करेक्शन कर लें। तो +8 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका आ गया इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब इक्वेशन 5 से हमने ऑब्टेन किया था 5A से I2 = 3/2I1, तो I2 का वैल्यू 3/2I1 रख दिया जाए इक्वेशन 6 में यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 5A। तो सब्स्टिट्यूटिंग I2 = 3/2I1 फ्रॉम इक्वेशन 5A इन इक्वेशन 6। तो पुटिंग I2 = 3/2I1 इन दिस इक्वेशन, पुटिंग I2 = 3/2I1 कहाँ से, फ्रॉम 5A इन इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 5A इन इक्वेशन 6 हमें I1 का वैल्यू आ जाएगा। जब I1 का वैल्यू आ जाएगा तो 5A से I2 का वैल्यू भी आ जाएगा और तब आसानी से फिर I3 का भी वैल्यू आ जाएगा किसी इक्वेशन से, जो I3 वाला इक्वेशन है मौजूद है इक्वेशन नंबर 4 में भी और इक्वेशन 3 में भी, किसी से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब वैल्यू रख दिया जाए इक्वेशन 6 में I2 का वैल्यू 3/2I1 5A से, तो क्या होगा 19I1 + 10I2 = कितना हो जाएगा 3/2I1 = 8 और एलसीएम हो जाएगा 2 और 19 × 2 38 हो जाएगा। एलसीएम 2 लिया गया, +10 × 3 30I1 और एलसीएम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 में = 16 और वी हैव हेयर 1 इक्वेशन 3 को यहाँ लिख लिया जाए, इसका यूज होगा अभी I1 + 2I2 + 4I3
इजकल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसमें I1 I2 का वैल्यू पुट करेंगे तो I2 का वैल्यू आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 38 + 30 दैट इज 68, और 68 I1 इजकल टू 16, देयरफॉर I1 इजकल टू 16/68, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 और यहाँ 17, 4 से 16 कैंसिल होकर के 4 हो गया यहाँ पर, न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 17 × 4 68, दैट इज I1 इजकल टू 4/17 एम्पियर। आंसर 4/17 एम्पियर I1 मीन्स करंट इन ब्रांच AB, करंट इन द वायर AB हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम। तो 10 ओम से कितना करंट फ्लो किया, I1 हो गया 4/10 ओम एम्पियर इन आर्म AB, इन आर्म AB जिसमें रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है, इन द आर्म AB ऑफ द सर्किट, ब्रैकेट में लिख दिया AB। अब I2 आराम से आसानी से निकल जाएगा, इक्वेशन 5A में रखते हैं I2 का वैल्यू, I1 का वैल्यू कितना 4/17, तो I2 का वैल्यू मालूम हो जाएगा, I2 इजकल टू 3/2 I1 है, तो इसका वैल्यू मालूम हो जाएगा I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू किस ब्रांच में होगा, AD ब्रांच में। तो अब यहाँ रखा जाए I2 इजकल टू I1 का वैल्यू पुट किया जाए इक्वेशन नंबर 5A में, तो पुटिंग I1 इजकल टू 4/17 इन 5A, तो पुटिंग I1 द वैल्यू ऑफ I1 इजकल टू 4/17 एम्पियर इन इक्वेशन 5A। इक्वेशन 5A वी हैव क्या होगा, इक्वेशन 5A क्या है, इक्वेशन 5A है I2 इजकल टू 3/2 इंटू I1, और I1 का वैल्यू 4/17, और ये 2 से 4 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6/17 एम्पियर हो गया, किसमें 6/17 एम्पियर करंट I2 का वैल्यू, जो कि AD ब्रांच में हो गया, AD ब्रांच में जो कि थर्ड आर्म है इसका सर्किट का, इसमें कितना करंट हो गया, I2 इजकल टू 6/17 एम्पियर, ब्रैकेट में लिख दें इन द आर्म AD, इन द आर्म AD ऑफ द गिवन सर्किट। ये भी आंसर हो गया, 2 वैल्यू मिल गया I1 I2 का। अब I3 का वैल्यू मालूम कर लिया जाए, I3 का वैल्यू, I1 और I2 का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दिया जाए, 3 वेरिएबल्स वाले में, जिसमें 3 करंट्स है, कौन है, इक्वेशन 3 है, -I1 + 2I2 + 4I3 इजकल टू 0। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 3, तो यूजिंग इक्वेशन 3 वी हैव यूजिंग इक्वेशन 3, इस सर्किट के ईच ब्रांच में करंट मालूम करना है, तो जैसा कि हम कर भी रहे हैं, 2 ब्रांच में तो मालूम हो गया, AB में और ADR में I1 I2 का वैल्यू। अब 3 में रख दिया जाए, -I1 है फर्स्ट टर्म, I1 कितना आया है 4/17, तो -4/17 + 2I2 दैट इज 2 × 6/17 + 4I3 इजकल टू 0, RHS है। अब यहाँ इसको सॉल्व किया जाए तो, और -4/17 + 12/17 इक्वल्स टू -4I3, और ये हो जाएगा कितना, 12 - 4 17 LCM हो जाएगा, 12 - 4 8, और 8/17 इजकल टू -4I3, 4 से 8 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, देयरफॉर I3 इजकल टू -2/17, I3 इजकल टू -2, निगेटिव आ गया, -2/17 एम्पियर। आंसर दैट इज किस आर्म में हुआ, आर्म डायगनल आर्म, दैट इज आर्म BD में, जिसमें रेजिस्टेंस 5 ओम, रजिस्टर 5 ओम का कनेक्टेड है, उसमें करंट I3 हो गया कितना, -2/17 एम्पियर इन द आर्म BD दैट इज इन 5 ओम रजिस्टर, करंट हो गया -2/7 एम्पियर। और यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, हमने करंट को एज्यूम किया था, डायरेक्शन क्या था, B to D I3 का डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है 2/17, इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन BD आर्म में 5 ओम रजिस्टर से होकर वह D to A है, न कि B to D। हमारा जो एजम्पशन है उसके जस्ट अपोजिट है करंट का फ्लो, जो प्रॉब्लम में आया, मैंने रिजल्ट में आया I3 इक्वल टू -2/17, दैट इज करंट इन द डायगोनल आर्म दैट इज इन आर्म इन द रजिस्टर 5 ओम दैट इज इन द डायगोनल आर्म BD फ्लोज फ्रॉम D to B, पॉइंट D to पॉइंट B, नॉट फ्रॉम B to D। नेगेटिव का मतलब यही है, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा करंट का, फ्रॉम, राइट डाउन, फ्रॉम पॉइंट D to पॉइंट B। तो 3 पार्ट्स में तो निकल गया, मतलब I1 I2 I3 करंट निकल गया। अब 2 आर्म में और बाकी है, किसमें, BC आर्म में, जिसमें करंट कितना है I1 - I3, तो I3 मालूम हो गया, तो इसको भी हम मालूम कर लें, I2 मालूम हो गया है 6/17। अब यहाँ पर I1 - I3 BC आर्म में कितना करंट होगा, BC आर्म में करंट हो जाएगा, करंट इन BC आर्म, राइट डाउन नाउ, करंट इन द BC आर्म ऑफ द सर्किट इन आर्म BC कितना हो गया, I1 - I3, I1 भी मालूम है,
I3 भी मालूम है, I1 का वैल्यू हमने फाइंड किया था, I1 इजकल टू 4/17 एम्पियर। तो 4/17 माइनस I3 कितना है, -2/17, -2/17 दैट इज 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4/17 प्लस 2/17 दैट इज 6/17 ओम 17 एम्पियर, सॉरी एम्पियर। ये आर्म हो गया किसमें, BC आर्म में करंट हो गया 6/17 एम्पियर, विच इज I1 माइनस I3। I3 का वैल्यू -2/17, I1 का वैल्यू 4/17। अब केवल एक आर्म बचा कौन, CD, DC में कितना करंट है, I2 प्लस I3। अब DC में कितना करंट है, I2 प्लस, DC में करंट है I2 प्लस I3। सो राइट डाउन करंट इन द आर्म DC इजकल टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। I2 कितना है, I2 है 6/17, I2 इज 6/17 एम्पियर, 6/17 और प्लस I3 कितना है, -2/17। तो प्लस माइनस 2/17, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6/17 माइनस 2/17 दैट इज 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर करंट हो गया किस आर्म में, फोर्थ आर्म में, सर्किट के फोर्थ आर्म में DC से होकर करंट कितना है, I2 प्लस I3, जिसका वैल्यू कितना हो गया, I2 प्लस I3 4/17 एम्पियर। और एक्सटर्नल सर्किट में कितना करंट है, I1 प्लस I2, मेन करंट I1 प्लस I2। I1 कितना है एक्सटर्नल सर्किट में, टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो I1 मालूम ही है, I2 भी मालूम है, इसलिए टोटल करंट I1 इन द एक्सटर्नल सर्किट, बैटरी से जो करंट प्रोड्यूस होगा वह कितना है, टोटल करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट और टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी और इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम द बैटरी इजकल टू I1 प्लस I इजकल टू I1 प्लस I2। I1 कितना है, I1 इज 4/17 एम्पियर, I1 इज 4/17 एम्पियर और I2 इज 6/17 एम्पियर। I2 इज 6/17 एम्पियर दैट इज 6 प्लस 17 LCM हो जाएगा, दैट इज I इजकल टू 10/17 एम्पियर। टोटल करंट हो गया 10/17 एम्पियर फ्रॉम द बैटरी और इन द एक्सटर्नल सर्किट, विच इज टोटल करंट I इजकल टू I1 प्लस I2। और इस प्रकार इस गिवन सर्किट NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम 3.9 चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का 3.9 प्रॉब्लम में जो सर्किट प्रोवाइडेड है टेक्स्ट बुक में, उसके डिफरेंट ब्रांचेज में करंट मालूम करना था। तो टोटल करंट का वैल्यू सभी आर्म्स में करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया गया और यह वीडियो भी कंक्लूड होता है। क्योंकि यह प्रॉब्लम लंबा था, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल और एंड सेकेंड रूल पर बेस्ड था, इसलिए इस वीडियो में केवल एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। और इस चैप्टर का मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अभी तो प्रॉब्लम्स ही हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में टोटल सिलेबस पहले ही जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनके वीडियोज और कुछ प्रॉब्लम्स भी का सॉल्यूशन पहले ही किया जा चुका है। तो टोटल वीडियो नंबर ये वीडियो नंबर 21 है, इसके पहले 20 वीडियोज हो चुका है और प्रॉब्लम 3.1 से लेकर 3.4 तक का सॉल्यूशन वीडियो नंबर 20 में किया गया था। ये 21 में किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल पर बेस्ड प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पहले कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट वीडियो नंबर 22 होगा इस चैप्टर का, उसमें NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 का प्रॉब्लम नंबर 3.5 से 3.8 का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।